Hello, welcome dear students. Good morning. How are you? Myself Tosip sir, and I welcome you all in this social science lecture. So, as you already know, in our previous lecture we are discussing the types of soil, right? In which we have already discussed about the red soil, alluvial soil because of the deposit of rivers in the flooded regions. That kind of soil is called as alluvial soil. Red soil because of the excess amount of iron oxide, the color of soil is red, and that is why it is called red soil. Black soil, moisture retaining capacity, and when the moisture goes into the atmosphere, it generates cracks, right? So these are the certain special characteristics about this soil. Laterite. Laterite is derived from the Latin word later. Later means brick. It is similar to the red soil. Desert soil. डेजर्ट सॉइल का मतलब होता है रेत की ज़मीन कि जहाँ पे सूखा रीजन होता है, कहाँ मॉइस्चर कम होता है और जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, वहाँ पे इस प्रकार की ज़मीनें पाई जाती है. सो नाउ फ्रॉम टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल एंड मार्शी सॉइल. दिस आर दी three another types of soil that we are going to discuss in this lecture. Okay, and further we will discuss the next concept, soil erosion and soil conservation, how we will conserve the soil. Okay, चलिए देखते हैं. Mountain soil. This type of soil is found in the valley and slopy regions of Himalayas at an altitude of about 2700 to 3000 meters. As usually the name suggests, mountain soil means what? The soil which is available on the slopy regions. जहाँ पे ढलान वाला एरिया होता है वहाँ पे इस प्रकार की ज़मीनें पाई जाती है. एंड मेजरली इन द हिमालयन रेंजेस, हिमालयन हिली रेंज और माउंटेन रेंज at the altitude of 2700 meters to 3000 meters, this kind of soil was found. Its layer is very thin and is underdeveloped. So because thin layer इसका क्यों होता है? Because इस रीजन के ऊपर जब भी पानी गुजरता है, या तो रेनी सीजन होती है तभी इसके ऊपर से पानी गुजरता है, तो पानी अपने साथ साथ जो मिट्टी होती है, ज़मीन होती है, उसको भी साथ में ले जाता है. दैट इज़ वाई द लेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉइल इज़ वेरी थिन. द सॉइल इज़ फाउंड इन असम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर. So majorly the states or the regions that are mentioned in this paragraph like Assam, Darjeeling, Uttarakhand, Himachal Pradesh and Kashmir, the regions are having a high altitudes, means the height of these regions is very high from the sea level, or in other words we can say that they are mountainous region. In Himalayas the soil is found at a general altitude in the region of pine and cedar trees. जहाँ पे पाइन और चीड़ के वृक्ष उगते हैं वहाँ पे इस प्रकार की ज़मीनें पाई जाती हैं. ओके, इसको पूरा टिक मार्क करिएगा पैराग्राफ को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये पूरा का पूरा पैराग्राफ टिक मार्क करना है आप लोगों को. चलिए, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल. जंगल की ज़मीन है, जैसा नाम वैसा ही काम. दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड विद इन द अल्टीट्यूड बिटवीन 3000 meters to 3100 meters in the coniferous forest of Himalayas, Sahyadri, Eastern Ghats and the Tarai region of Himalayas. हिमालयन रेंजेस के जहाँ पे 3000 से लेके 3100 मीटर की रेंजेस होती है, मतलब ऊंचाई होती है, वहाँ पे जो जंगल पाए जाते हैं, जैसे कि हिमालय रेंजेस के अंदर, सह्याद्री रेंजेस के अंदर, ईस्टर्न घाट्स और तराई के जंगलों के अंदर इस प्रकार की ज़मीनें पाई जाती है. The surface of the earth is covered by the shaded leaves of the trees. And the upper part of the land becomes black due to the increase in the humus caused due to decaying leaves. The surface of the earth is covered by the shaded leaves. Shaded यानी कि बिखरे हुए पत्ते, जो जंगलों के अंदर वृक्ष होते हैं उसके ऊपर से जो पत्ते जड़ जाते हैं, मतलब नीचे गिरते हैं, उससे पूरी ज़मीन कवर्ड होती है. So that is why the upper part of this land is more
हैविंग ह्यूमस यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स। क्यों? क्योंकि जो पत्ते उसके ऊपर झड़ते हैं, मतलब सरफेस के ऊपर वहाँ पे पड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से वो डीके होते जाते हैं, मतलब वो खराब होके है सड़ते हैं और ज़मीन के साथ घुल मिल जाते हैं। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, because of the decaying vegetation, the humus content is getting higher and higher. So in the forest type of soil, this type of situation is very interesting, and this type of situation occurring at a recurring type interval. Recurring यानी कि बार बार ऐसी चीज़ें होती रहती है, क्योंकि वृक्ष में से पेड़ में से पत्ते गिरते रहते हैं और वो पत्ते सड़ते रहते हैं और उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट जो है वो ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ता रहता है। It changes into blue or red color while going down within the land. Beside tea, coffee, spices, other crops like wheat, maize, barley, paddy, etc. are also taken. The soil is found in limited area. This soil is found in a limited area because the forest region is very less, as we already know. कि जंगलों का विस्तार जो है वो हमारे गुजरात या तो भारत के अंदर भी ले लो बहुत ही कम है, इसलिए इस प्रकार की ज़मीनें बहुत ही कम पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्शी और पीटी सॉइल let us discuss it. This type of soil develop in humid regions due to the accumulation of biotic elements. जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर वाला एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे इस प्रकार की ज़मीनें बनती है। How it will form, let us know. During rainy season, this land is submerged under water. So this is a one kind of wonder कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और रेनी सीजन के अंदर जहाँ पे ज़मीनें कंटिन्यूसली पानी के अंदर रहती है, एंड व्हेन द वाटर रिसीड्स पैडी कैन बी ग्रोन इन इट। मतलब कि ज़मीन के ऊपर जो भी वेजिटेशन उगता है मॉनसून के आने के बाद, ऐसी कुछ रीजन होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा, वहाँ पे ज़मीन के ऊपर पानी भरा हुआ रहता है और इसी भरे हुए पानी की वजह से उसके अंदर जो वेजिटेशन है वो क्या होती है, डीके होने लगती है, पानी के अंदर डीकेइंग होने लगती है, मतलब सड़ने लगती है और वो ज़मीन के साथ मिल जाती है। मीन्स द बायोटिक एलिमेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सॉइल गेटिंग हायर एंड हायर in percentage. Okay, so this type of soil which is continuously submerged under water and water recedes, paddy can be grown in it. मतलब जब भी पानी उसमें से उतर जाए तो उसके बाद आप उसमें फसल उगा सकते हो। So this type of soil is called as marshy or peaty soil. दलदली ज़मीन कि जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो। There is an excess of biotic elements and mineral in such soil, but it shows insufficiency in phosphate and potash. पोटास और फॉस्फोरस जो कि मिनरल्स है उसकी कमी उसके अंदर दिखाई देती है। Such type of soil is found in Odisha, West Bengal, coastal Tamil Nadu, central area of northern Bihar, Almora district of Uttarakhand, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है और पानी जहाँ पे भरा हुआ रहता है, सुंदरबन के जंगल जो है वहाँ पे पानी जो है कंटिन्यूसली भरा हुआ रहता है, तो उसकी वजह से वहाँ पे इस प्रकार की ज़मीनों का निर्माण होता है। The soil is very limited extent, बहुत ही कम मात्रा में ये सॉइल पाई जाती है। सो ये भी पूरा पैराग्राफ टिक मार्क करिएगा क्योंकि इसमें से आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछेंगे कि एक्सप्लेन दी टाइप ऑफ एनलिस्ट द नेम ऑफ टाइप ऑफ सॉइल एंड एक्सप्लेन एनी वन इन ब्रीफ, कोई एक के बारे में समझाइए। ठीक है, सॉइल इरोजन नेक्स्ट टॉपिक अवर। सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? सॉइल इरोजन मीन्स व्हाट? इरोजन मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर। इरोजन का मतलब क्या होता है कि मैं आपको अगर समझाऊं यहाँ पे फिगर से, तो ये जो दो फिगर्स आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस टू फिगर्स, राइट, व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग दैट द सम अमाउंट ऑफ लैंड, नॉट द मेजर बट सम अमाउंट ऑफ लैंड इज लैंड पार्टिकल्स मूविंग अवे फ्रॉम दैट ओरिजिनल प्लेसेस। यहाँ पे जो ये खड्डे पड़ गए हैं वो किसकी वजह से पड़े हैं? तो वहाँ से जो लैंड के पार्टिकल्स थे, मतलब वहाँ पे जो ज़मीन थी वो किसी ना किसी मूविंग चीज़ की वजह से, या तो वो पानी है या तो वो हवा है, उसकी वजह से वहाँ के पार्टिकल्स, वहाँ की ज़मीन उसके साथ बह के आगे चली गई है, तो इसे कहते हैं सॉइल इरोजन। ठीक है, इन अदर वर्ड्स
the faster transportation of the particles of the surface land to other place by natural forces. कुदरती जो बल होता है यानी कि हवा और पानी के बहाव से ज़मीन का जो ऊपरी हिस्सा है उसका एक जगह से दूसरी जगह चले जाना उसे सॉइल इरोजन कहा जाता है. It takes many years to form the upper layer because we already know that a very thin layer of the soil is हेल्पफुल फॉर द क्रॉप. फसल के लिए बहुत ही थिन लेयर उसके लिए काफ़ी होता है. ठीक है, और उसका ऊपर के लेयर को जनरेट होने के लिए बहुत ही सालों लग जाते हैं. इफ द सॉइल पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बिकॉज ऑफ हैवी रेन और बाय स्टॉर्मी विंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीजेस. ज़मीन का ऊपला जो फर्टाइल प्लेन होता है वो पानी के बहाव के साथ फ्लड में या तो स्टॉर्म यानी कि जब तूफान आए तो उसके साथ जब भी ऊपला हिस्सा घिस जाता है तो उसकी वजह से वहाँ पे जो फसल उगाने की क्षमता है वो डिकेइंग हो जाती है, मतलब घट जाती है, और उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो भी घट जाता है. इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी टू मेंटेन द अपर लेयर फॉर एग्रीकल्चर. उसके लिए ज़मीन का जो ऊपरी भाग है उसका बने रहना ज़रूरी है. So the soil erosion should be prevented. So in this paragraph, when the short note comes, they explain the soil erosion in detail. So you should mention the whole paragraph. आपको पूरे paragraph के बारे में description देना होगा. But when the board will ask about the only soil erosion, so first 3 lines are important. Okay, this is the definition of soil erosion. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. मेजर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन को घटाने के तरीके आप देख रहे हो कि देखो यहाँ पे ये जो ज़मीन है इस ज़मीन के ऊपर यहाँ पे आपको पत्थर दिख रहे होंगे. तो ये पत्थर पहले नहीं होते हैं, लेकिन जब भी यहाँ से पानी गुजरता है इस वे में तो पानी अपने साथ साथ जो ऊपरी मिट्टी है ये वाली इसको भी लेके चला जाता है. तो नीचे तो रॉक सॉलिड ही है, मतलब नीचे तो पत्थर ही होते हैं. तो ऊपरी भाग है क्योंकि पत्थर में पेड़ पौधे नहीं उगते लेकिन जमीन के अंदर उगते हैं जो हमें मालूम है. ठीक है, सो इन दैट वे द सॉइल इरोजन विल टेक्स प्लेस. फर्स्ट मेजर टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन. कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड. ग्रेजिंग मतलब होता है चराना. जो भेड़ बकरियां गाय भैंसे चराते हैं उनको ये ग्रेजिंग एक्टिविटी काफ़ी कम करनी चाहिए ताकि जो भी घास उगता है या तो पेड़ पौधे उगते हैं अगर वो बरकरार रहेंगे तो वो अपने रूट्स से ज़मीन को संभाल के रखेंगे, मतलब जकड़ के रखेंगे. वो सॉइल को इरोड नहीं होने देंगे, अपने वाटर या तो हवा के साथ खींचने नहीं देंगे. ठीक है, सो वी शुड कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड. सेकंड, प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन कंटूर मेथड इन स्लोपी रीजियंस. जो स्लोपी रीजियंस है वहाँ पे प्लांटेशन यानी कि वृक्षारोपण हमें करना चाहिए कंटूर शेप के अंदर. अभी कंटूर शेप इसलिए कैसा शेप वो मैं आपको बताऊंगा. कंटूर शेप का मतलब होता है, लेट मी शो यू, कि अगर ये एक स्लोपी रीजन है यहाँ पे तो हमें क्या करना चाहिए, ये जैसे मैंने 3 लाइन बनाई है तो ये रो क्रिएट की है. यहाँ पे पेड़ों को इस तरीके से उगाना चाहिए. ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंटूर शेप प्लांटेशन. ताकि क्या हो, पानी का बहाव यहाँ से आए तो उसकी वजह से जो बह के जाने वाला पानी है वो अपने साथ कम से कम मिट्टी लेके जाए. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कंटूर शेप ट्री प्लांटेशन. चलिए आगे देखते हैं. प्लांट ट्री इन फैलो लैंड. जहाँ पे बिन उपजाऊ जमीन है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को बोना चाहिए. कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेयर देयर आर स्ट्रीम्स. जहाँ पे झरने हैं, जहाँ से पानी ऐसा बहता है
वहाँ पे चेक डैम को क्रिएट करना चाहिए, ताकि यहाँ पे अगर हम चेक डैम क्रिएट करें इस तरीके से, तो जो बह के जाने वाला पानी है वो उसके अंदर कंजर्व होके रहे, और उसके साथ साथ जो ज़मीन लेके जा रहा है वो ज़मीन लेके ना जा पाए, ज़मीन वहीं की वहीं रहे, अलूवियल सॉइल काइंड ऑफ डिपॉजिट वहाँ पे हो। कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। हमें जो कोई भी फसल है उसको बहुत ही ज़मीन के अंदर गहराई में उसको बोना चाहिए, ताकि जो पानी की स्पीड है वो कम हो जाए। चलिए, so these are the measure to prevent the soil erosion. Now the term comes soil conservation. Soil conservation. Soil conservation means to prevent the soil erosion and to maintain its quality. Conservation का मतलब ही यही है कि जो मृतप्राय चीज़ होने जा रही है, या तो जो चीज़ खत्म हो रही है उसको संभाल के रखना, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करना। Soil conservation is directly connected to retain the soil particles at their original place. So, the first objective of soil conservation is to prevent soil erosion. Okay? जो soil particles transport हो रहे हैं one place to another place, to stop that transportation caused by the natural forces. So this is the primary objective of soil conservation, right? Different remedies are used at different places in the world according to its location and problems. If the soil is not conserved, then there are chances of floods, which enhances the risk against lives and property. Thus, soil conservation is very much necessary. So listen, what are the ways to conserve the soil? If I will show you, ये एक स्लोप बनाया गया है यहाँ पे, और वहाँ से ऐसा कहा गया है कि यहाँ से अगर पानी को गुजारा जाए तो पानी बहुत ही स्पीड में जाएगा, ठीक है। तो पानी अगर अपना बहाव तेज कर देगा तो वहाँ से उसके साथ जो मिट्टी है वो भी उसके साथ चली जाएगी, ठीक है। बट इफ वी डिग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ होल्स, यहाँ पे ऐसे होल हम क्रिएट करें कि जहाँ पे पानी भरा रह सकता है, तो क्या होगा कि अगर वहाँ से पानी गुजरेगा तो क्या होगा कि पहले उसके अंदर भर जाएगा ये स्पेस के अंदर, और उसके बाद वहाँ से बहना चालू करेगा। ये छोटे छोटे चेक डैम्स है, ये बड़ा सा स्लोपी रीजन है वहाँ पे, ये चेक डैम्स है। तो उससे होगा क्या कि जो पानी है उसका बहाव कम हो जाएगा, और बहाव कम होने के कारण जो सॉइल इरोजन है वो खत्म हो जाएगा, मतलब स्टॉप हो जाएगा, और सॉइल कंजर्व हो जाएगी। यहाँ पे उसका साइड व्यू दिखाया गया है आपको। वाटर हैविंग अ फास्टर फ्लो percolates less in soil. Water accumulated on the terraces percolates slowly and raise the groundwater level. So basically यहाँ से पानी जो है वो तो ज़मीन के अंदर उतरता ही नहीं है, लेकिन साथ साथ में जो सॉइल का एक इम्पॉर्टेंट लेयर है उसको भी साथ में लेके चला जाता है। बट इफ़ वी कंस्ट्रक्ट दिस टाइप ऑफ डैम्स, सो बिकॉज ऑफ दिस डैम्स द सॉइल इज कंजर्व्ड, बट पैरेलली the groundwater level is also increased. So there are two benefits by one single method. Okay. Now what are the remedies of soil conservation? The roots of the trees in forest cover hold up the soil particles. मतलब soil conservation करने के लिए क्या करना चाहिए, तो कि फॉरेस्ट कवर जो है उसको बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो जमीन को पकड़ के रखते हैं, मतलब जकड़ के रखते हैं, उसको बह जाने नहीं देते पानी के साथ या तो हवा के साथ। प्लांट ट्रीज इन द रिवर्स गॉर्जेस ऑन द माउंटेन स्लोप्स। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को हमें वहाँ पे बोना चाहिए, कहाँ पे, जहाँ पे स्लोपी रीजन है वहाँ पे, और रिवर का गोर्ज यानी कि जहाँ पे नदियों का बहाव होता है वहाँ पे। अ सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन नियर अ डेजर्ट रीजन टू प्रिवेंट द विंड्स विथ मोर वेलोसिटी, इट विल स्टॉप द एडवांसिंग डेजर्ट। यानी कि जहाँ पे रण विस्तार होता है, जहाँ पे डेजर्ट एरिया होता है, वहाँ पे उसके एंड के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, वृक्षों को वृक्षारोपण करना चाहिए, ट्री प्लांटेशन हमें करना चाहिए, ताकि जो स्टॉर्म आए कभी भी, तो स्टॉर्म की वजह से जो ज़मीन उसके साथ चली जाती है, तो ये वृक्ष क्या करेंगे, उसकी हवा के बहाव को कम कर देंगे।
द रिवर फ्लड्स शुड बी कंट्रोल्ड बाय डाइवर्टिंग देयर फ्लो इन द अदर रिवर्स और इन ड्राई रिवर बेड्स। यानी कि नदियों के बहाव को, अगर नदी का बहाव इस वे में है कि जहाँ पे आगे कोई गांव है या तो उपजाऊ ज़मीन है, तो नदी के बहाव को यहाँ पे डाइवर्ट कर देना चाहिए, कि जिसकी वजह से या तो जहाँ पे सूखा रीजन है वहाँ पे डाइवर्ट कर देना चाहिए, ताकि वहाँ पे पानी का अच्छे से इस्तेमाल हो सके। द अनरिस्ट्रिक्टेड पेस्चरिंग लूजन्स द सॉइल लेयर ऑन द माउंटेन्स, इट शुड बी प्रिवेंटेड। मतलब जंगलों में, जहाँ पे माउंटेन में, जहाँ पे ऐसे रीजन है कि जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ग्रेजिंग होती है, वहाँ पे लोग पेड़ बकरियाँ चराने के लिए जाते हैं, या तो अनइवन वहाँ पे लोग अपनी सुविधा के लिए पेड़ों को काटते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो यूज़फुल लेयर ऑफ ट्रीज है वो निकल जाते हैं और सॉइल इरोजन बढ़ता है, सॉइल कंजर्व होके नहीं रहती। ठीक है, जनरली यहाँ पे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल दिए गए हैं हाउ वी कैन प्रिवेंट दिस सॉइल इरोजन। सो ये खास करके ये खेती टेरेस फार्म्स जिसे कहा जाता है, वो चाय की खेती में ज़्यादातर उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप वाइज देखो क्रिएट किए गए हैं और वहाँ पे प्लांट्स को प्लांट किया गया है टेरेस फार्म्स के अंदर। हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन मतलब यहाँ पे देखो, इसे कंटूर शेप कहते हैं। देखो ये स्लोप है, यहाँ से अगर पानी गुजरा तो प्लांट बाय प्लांट से गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और सॉइल इरोजन कम होगा। ओके, चलिए टॉपिक खत्म करते हैं यहाँ पे। मेथड्स लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस फार्म एक्सेट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ह्यूम्स कंटेंट्स शुड बी एडेड टू द सॉइल विच हैज लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी। जो ज़मीन बिन उपजाऊ हो गई है उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट हमें बाहरी तरीके से ऐड करना चाहिए, या कि मृत प्राणी के अवशेष है, जो वनस्पति है उसके अवशेष है, हमें बाहर से ऐड करने चाहिए, कि जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी जो है वापस रिटेन हो पाए। सो बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस रेमेडीज सॉइल कैन बी कंजर्व्ड। ज़मीन को संभाल के हम रख सकते हैं इस मेथड को फॉलो करने से। द conservation of soil is a strong necessary today. Government, society and the people should work together for its conservation. So not only government, not only people or not only society individually work, but together we work, together we gain. Okay? चलिए, तो ये थे रेमेडीज खास टिक मार्क करिएगा सभी लोग, सारे के सारे। और यहाँ पे मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये टिक मार्क भी करिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ एक्सरसाइज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।